اس شام بھی ہم ساحل پر بہت دیر تک گھومتے رہے اور اس کے بعد تھک کر واپس اپنے ٹریلر میں آ گئے۔ موہنی نے بہت اچھا کھانا تیار کیا اور کھانے سے فراغت حاصل کر کے ہم کافی پی رہے تھے۔ سامنے ہی ایک کھڑکی تھی جس سے باہر کے مناظر بھی نظر آ رہے تھے۔ آج اتفاق کی بات تھی کہ کوئی ٹریلر روشن نہیں تھا اور شاید بیچ پر اس وقت ہمارے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں۔ ہم کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دور سے کچھ ایسی بھاگ دوڑ سنائی دی جس نے ہمیں اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ موہنی بھی اتفاق سے اس وقت اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ہمیں فائرنگ کی آواز سنائی دی اور میں نے جلدی سے کافی کی پیالی ہاتھ سے رکھ دی۔ کوئی گڑبڑ ہے موہنی؟ ہاں لگ رہا ہے۔ روشنیاں بجھا دو، میں نے کہا اور موہنی نے ٹریلر کے سوئچ آف کر دیے۔ ہم شیشے سے باہر دیکھنے لگے۔ بھاگ دوڑ ٹریلروں کے درمیان ہی نظر آ رہی تھی اور کوئی ایسی مشکل تھی جو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا خیال ہے موہنی؟ خاموشی سے انتظار کیا جائے؟ پتہ نہیں کیا چکر ہے، جو کچھ بھی ہے تم اس چکر میں مت پڑو، موہنی بولی۔ نہیں پلیز مجھے اجازت دو۔ میں خاموشی سے ٹریلر سے نیچے اتر گیا۔ جس جگہ پر مجھے یہ بھاگ دوڑ نظر آئی تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے دوسرے ٹریلروں کا سہارا لیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑے فاصلے پر پہنچنے کے بعد مجھے دو افراد نظر آئے جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، لیکن شاید ان لوگوں نے میری سانسوں سے یہاں میری موجودگی کا اندازہ لگا لیا۔ دوسرے لمحے میں نے انہیں محتاط ہوتے ہوئے دیکھا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں میری جانب رخ کرنے ہی والے ہیں اور میں نے اپنی جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ میں آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا ٹریلروں کے پیچھے والے حصوں کی جانب جانے لگا کہ عقب سے کسی نے میری گردن پر ہاتھ مارا۔ میں نے فوراً جھکائی دے کر اپنے آپ کو اس گرفت میں آنے سے بچا لیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ کثرتی بدن کا خوفناک انسان تھا۔ اس کا چہرہ رات کی تاریکی کے باوجود عجیب سے انداز میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا اور بڑی بڑی آنکھوں سے وحشت جھانک رہی تھی۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور زمین پر لوٹ لگا کر اس طرح پاؤں اوپر اٹھا لیے کہ میری کمر اس کے پیروں کی زد میں آ گئی۔ پھر کچھ اس انداز سے اس نے یہ داؤ لگایا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس نے مجھے اس طرح چکر دے کر عقب سے پکڑ لیا اور پھر اس طرح اوپر اٹھا لیا جیسے کوئی معمولی سا کھلونا ہوں۔ بلا شبہ وہ خاصا طاقتور آدمی تھا۔ مجھے اوپر اٹھا کر اس نے پوری قوت سے زمین پر دے مارا، لیکن کم از کم اتنا تو میں بھی کر سکتا تھا کہ کمر کے بل یا سر کے بل زمین پر آنے کی بجائے پیروں کے بل زمین پر آؤں۔ چونکہ زندگی انہی لمحات سے دوچار رہی تھی مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، لیکن چند لمحوں کے لیے مجھے سنبھالنا ضرور پڑا۔ اسی وقت دوسرا آدمی بھی عقب سے آیا اور اس نے نہ جانے کس طرح سے جھک کر میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں ایک بار پھر بری طرح گر پڑا، جبکہ میں پلٹ کر اس شخص پر حملہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ٹانگ پکڑ لینے کی وجہ سے میری جد و جہد ناکام ہو گئی اور اس شخص نے ایک بار پھر میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس بار اس نے میری گردن کی ہڈی پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر اس نے مجھے اس طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ مجھے اپنی گردن کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر میں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود بھی عمل کیا اور اپنا گھٹنا پوری قوت سے اٹھا لیا۔ اس شخص کے منہ سے ایک کراہ نکلی اور دوسرے لمحے میں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ نیچے گرتے ہی پہلے آدمی نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ایک طرح سے مجھ پر چھا گیا۔ میں نے ایک لمحے میں محسوس کیا کہ اس نے چاقو کا پھل نکال لیا ہے اور اب صورتحال زیادہ ہی خطرناک ہو گئی ہے۔ اس نے پوری قوت سے یہ چاقو میرے پیٹ میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنی جگہ خالی چھوڑ دی اور چاقو زمین سے ٹکرایا۔ شاید اسی طرح زمین سے ٹکرانے سے یہ چاقو خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہی لگا، لیکن اب بالکل ہی موقع نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کو مہلت دوں۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے ٹپکتے ہوئے خون کو دیکھا، پھر ہاتھ کو، اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر انتہائی خونخوار کیفیت پھیل گئی۔ وہ پھر پلٹ کر مجھ پر حملہ ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسی لمحے دوسرا آدمی بھی میرے عقب میں آ گیا اور فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ چاقو والے کا ہاتھ آگے بڑھا، لیکن اس کا اپنا ساتھی اس کے زد میں آ گیا اور اس کے حلق سے ایک چیخ سی نکل گئی۔ وہ گھرائی ہوئی آواز میں کچھ بولا جس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ سکے، اور اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر اس دوسرے شخص کا گریبان پکڑ لیا۔ پھر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر مجھے موقع مل گیا۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں میرے پیچھے بھاگے، لیکن اب میں ان کے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے ایک چالاکی کی، قریب ہی ایک ٹریلر موجود تھا، اس کی پشت سے چڑھ کر میں اس کی چھت پر پہنچ گیا اور اس طرح بے آواز پہنچا کہ ان دونوں کو میری حرکت کا علم نہ ہو سکے۔ میں نے ان دونوں کو ایک طرف دوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا، لیکن بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میں ان پر نگاہیں جمائے دیکھتا رہا۔ ٹریلر کی چھت کافی اونچی تھی اور اس اونچی چھت سے میں انہیں مختلف ٹریلروں کے درمیان گردش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھے تلاش کر رہے تھے، لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں کسی ٹریلر کی چھت پر ہو سکتا ہوں۔ خاصی دیر میں یہاں رک کر ان کی بھاگ دوڑ دیکھتا رہا۔
پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور دور تک میری نگاہیں اس کار کو تلاش کرنے لگیں۔ ساحل کے ایک حصے میں کار کی اکبی روشنیاں نظر آئیں اور پھر وہ دور ہوتی چلی گئیں۔ اندازہ یہی لگایا جا سکتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں، مگر خاصی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ قدم میں نے اٹھا تو ڈالا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ بے مقصد ہی ہو رہا ہو اور اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ پھر خاصا وقت اسی طرح گزر گیا اور اس کے بعد مجھے ایک دم موہنی کا خیال آیا۔ اس کا خیال آتے ہی میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اگر یہاں ان دونوں آدمیوں کے اور ساتھی بھی ہوئے تو کہیں موہنی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ دوسرے لمحے میں پھرتی سے اپنی جگہ سے نیچے اترا اور میں نے اپنے ٹریلر کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ میں مختلف ٹریلروں کے درمیان سے نکلتا ہوا اس طرف جا رہا تھا کہ مجھے ایک کراہ سنائی دی۔ یہ کراہ ٹریلر کے نچلے حصے سے ابھری تھی۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میرا ٹریلر یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن انسان کی فطرت میں تجسس بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں رک گیا اور کوشش کرنے لگا کہ دوبارہ مجھے یہ آواز سنائی دے تو میں کچھ کوشش کروں۔ یہ ایک دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب میں دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار تھا۔ یعنی اگر کوئی چالاکی سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو میں اس حملے کو ناکام بنا سکوں۔ کراہ کی آواز مجھے دوبارہ سنائی دی اور وہ ٹریلر بھی نظر آ گیا جس کے نیچے سے آواز ابھری تھی۔ روشنی کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں ٹریلر کے نیچے جھک کر جھانکنے لگا۔ مجھے وہاں ایک انسانی جسم نظر آیا جو سیدھا ٹریلر کے نیچے پڑا ہوا تھا اور کراہ کی آواز اسی کے حلق سے ابھری۔ تم جو کوئی بھی ہو باہر نکل آؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں خود باہر نہیں نکل سکتا، میری مدد کرو۔ مجھے ایک بھاری آواز سنائی دی اور میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انہی دونوں میں سے کوئی ہو یا پھر کوئی تیسری شخصیت جو خود میرے لیے ہی خطرناک نہ ہو جائے۔ لیکن بہت عرصے سے ذہن کسی ہنگامے کی تلاش میں تھا اور ہنگامہ قریب آ گیا تھا تو میں اسے گریز کر رہا تھا۔ اصولی طور پر اب تو یہی سوچنا چاہیے تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ میں اسے باہر نکالنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں بازو پکڑ لیے اور اسے باہر گھسیٹنے لگا۔ وہ ایک قوی ہیکل آدمی تھا، عمدہ قسم کے سوٹ میں ملبوس، لیکن تاریکی کے باوجود مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زخمی ہے۔ میرے ہاتھوں میں خون کی چپچپاہٹ ہو گئی، تاہم بمشکل تمام میں نے اسے باہر گھسیٹا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر میرے ذہن کو ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا۔ یہ چہرہ مقامی نہیں تھا بلکہ یہ کوئی مشرقی آدمی ہی تھا، انتہائی پررعب شکل اور اچھی جسامت کا مالک۔ میرے دل میں ہمدردی کی لہر اٹھی اور میں جانتا تھا کہ یہ لہر کسی نئی کہانی کا آغاز ہے۔ اندازہ یہی ہو رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بار بار آنکھیں بھینچ رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس میں ناکامی محسوس کر رہا ہو۔ وزنی آدمی تھا اور پھر یہ احساس بھی تھا کہ زخمی ہے۔ کندھے پر لادوں تو پورا لباس خراب ہو جائے گا، لیکن پہلی بات یہ انسان تھا۔ اب مسٹر جو کچھ بھی ہے وہ جانے اور اس کا کام، لیکن اس وقت وہ ہمدردی کا مستحق تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چہرے نے مجھے متاثر کیا۔ نقوش 100% مشرقی ہی تھے، ہندوستان یا پاکستان کا باشندہ معلوم ہوتا۔ اس احساس سے ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ میں نے جھک کر اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا تو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تمہیں پریشانی ہوگی، میرا وزن؟ لیکن میں اسے لیے ہوئے اپنے ٹریلر کی جانب چل پڑا۔ بس یہ خوف تھا کہ کہیں وہ لوگ نہ آ جائیں جنہوں نے اسے زخمی کیا۔ اس کے بدن سے اب بھی خون بہہ رہا تھا اور میں اسے محسوس کر رہا تھا، لیکن میں اسے لیے ہوئے ٹریلر میں داخل ہو گیا۔ موہنی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی اور خاصی الجھی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر چونک پڑی، پھر صورتحال کا اس نے بھی اندازہ لگا لیا اور جلدی جلدی ایک ایسی جگہ خالی کر دی جہاں میں اسے لٹا سکتا۔ اس نے اس شخص کو وہاں لٹانے میں بھی مدد کی۔ وہ ہوش میں ہی تھا۔ میں نے جھک کر اس کا زخم دیکھا اور ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ اس کے جسم پر گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک گولی بالکل چھاننے کے پاس بغل کے قریب لگی تھی اور کسی ایسی رگ کو پھاڑتی چلی گئی تھی جس نے اس کے خون بہنے کی رفتار بہت تیز کر دی۔ دوسری گولی ران پر لگی تھی۔ ویسے وہ بہت اچھی صحت کا مالک تھا اور کچھ خصوصی صلاحیتوں سے آراز تھا، ورنہ اس کیفیت میں کم از کم بے ہوش ہو جانا تو لازمی ہی بات تھی، لیکن اپنی قوت ارادی سے کام لے کر خود کو ہوش میں رکھے ہوئے تھا۔ میں نے موہنی سے کہا، موہنی، فی الحال ہم خون روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے۔ تم یوں کرو، تھوڑا سا کپڑا جلا کر مجھے دو تاکہ میں زخم پر رکھ کر خون روکنے کی کوشش کروں۔ اس کے علاوہ میں گاڑی سے بریک آئل نکال کر لاتا ہوں، بریک آئل اس کا خون روک دے گا۔ پھر میں اپنی کار کی جانب بڑھا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہاں پہنچ گیا۔ اس دوران موہنی اس کے زخم کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اس نے اس کا لباس اس جگہ سے پھاڑ دیا اور کپڑا جلا کر اس پر برابر رکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس پر بریک آئل ڈالا اور اس شخص نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ ایسے شدید زخم پر بریک آئل جو کام دکھاتا ہے وہ معمولی کام نہیں ہوتا۔
लेकिन हम उसका खून रोकने में कामयाब हो गए। फिर इसके बाद वहीं से कपड़ा लेकर उसके जख्मों पर बांध दिया गया। मैंने मोहिनी से कहा, अब इन हालात में जाहिर है हम यहाँ नहीं रुक सकते। तुम ऐसा करो, गाड़ी बिल्कुल करीब ले आओ। ये भी खतरा है कि यहाँ वो लोग जिन्होंने इसे जख्मी किया है दोबारा ना पहुंच जाएं। ठीक है, मोहिनी ने कहा और चाबी लेकर बाहर निकल गई। हमारी गाड़ी ट्रेलर के करीब आकर रुक गई तो मैंने उस शख्स को गाड़ी में मुंतकिल किया और इसके बाद जिस कदर बर्क रफ्तारी से मुमकिन हो सकता था हम उसे लेकर चल पड़े। उसने भराई हुई आवाज में कहा, मेरा ख्याल है अब मेरी सलाहियतें गुम होती जा रही हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरे दोस्त, एक आखिरी एहसान और करो मुझ पर। हाँ कहो। किसी अस्पताल में ना ले जाना, इसके अलावा तुम्हारा जो दिल चाहे करो, क्योंकि किसी भी अस्पताल में मौत मेरे बहुत करीब हो जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी ड्राइव करता रहा। वैसे भी उसे किसी अस्पताल में ले जाना खुद को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ था। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था इस शख्स के बारे में। अगर किसी के बारे में मुझसे सवाल किए गए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लंदन में मेरी कोई भी हैसियत सही, लेकिन दियारे गैर था और सख्त कवानीन का शहर, चुनाचे मजबूरी थी। वैसे जहां हमारा क्याम था वहां दोनों जगहों पर हर तरह के इंतजामात थे। इस सिलसिले में ना मैं बेवकूफ़ था ना मोहिनी। हम ज़रूरतों को अपने करीब ही रखने के आदी थे। मैंने ड्राइविंग बहुत तेज़ रखी। कुछ वक्त के बाद मोहिनी ने आहिस्ता से कहा, यह बेहोश हो गया है। इतनी देर तक होश में रहा, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ अंदाजा हुआ कौन है? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया और मोहिनी खामोश हो गई। हम जिस कदर बर्क रफ्तारी से अपने ये सफ़र तय कर सकते थे उस तरह अपने घर पहुंचे। फिर रात में जागने वाले मुलाजमों की मदद से मैंने उसे अंदर एक कमरे में पहुंचा दिया। मोहिनी जानती थी कि उसे क्या करना है, चुनाचे वह फौरन ही दूसरे कमरे की जानिब दौड़ गई और हम ऐसी अद्वियात ले आए जिससे फौरी तौर पर उसे मदद दी जा सकती। जख्म साफ किए गए। वो गहरी बेहोशी में मुब्तला था, लेकिन उसे मजीद बेहोश करने के लिए मैंने उसे 2 इंजेक्शन दिए। फिर उसके जख्मों को आर्जी तौर पर बैंडेज कर दिया गया। वैसे एक निगाह में अंदाजा हो गया कि गोली के निशानात हैं, लेकिन इस सिलसिले में फिलहाल कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अगर इस शख्स को सूरत हाल मालूम होती और ये पता चल जाता कि असल मसला क्या है तो अस्पताल का भी बंदोबस्त किया जा सकता था और इस सिलसिले में अलियास बेग से मदद ली जा सकती थी जो हर फन मौला था, और यहाँ लंदन में हमारी तमाम मुश्किलात का हल। लेकिन ये रात तो इंतजार करना ही था। मोहिनी ने कहा, क्या ख्याल है, जागते रहोगे? जरूरत तो नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात की परेशानी है। क्या? ट्रेलर में खासा खून पड़ा हुआ है, उसे साफ होना चाहिए। हो सकता है मामला पुलिस के हाथों में पहुंच जाए। मोहिनी सोचती रही, फिर उसने कहा, ट्रेलर बंद कर दिया गया है, जरा सी सूरत हाल बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि उसकी सफाई वगैरह कर दी जाए। क्या हम अलियास बेग को इस सिलसिले में इस्तेमाल करें? अभी उसकी ज़रूरत नहीं, बाद में अगर कोई संगीन सूरत हाल हुई तो देखा जाएगा। तो फिर मेरा ख्याल है आराम करो, सुबह से पहले ये होश में नहीं आएगा। वैसे अच्छा खासा खून बह गया है, ताकतवर आदमी है और शायद कुव्वत इरादी भी ज़बरदस्त है, क्योंकि इस कदर जख्मी होने के बावजूद काफ़ी वक्त होश में रहा और फिर शायद इसने महसूस कर लिया कि अब होश आवास को कायम रखना मुमकिन नहीं। चुनाचे उसने अपने बेहोश होने की इत्तला भी हमें दे दी। फिर मैं और मोहिनी बेडरूम में पहुंच गए। मुलाजमों से कह दिया गया कि रात की ड्यूटी पर ज़रा मुस्ताद रहें। वैसे हमारे मुलाजिम बहुत अच्छे थे। रफ्ता रफ्ता हमने उन पर बेहद एतमाद कायम कर लिया। चुनाचे ज़्यादा फिक्र नहीं थी, उन्हें सख्त पहरा देने की हदायत कर दी गई। फिर हम गहरी नींद सो गए और सुबह को मोहिनी ही की आंख खुली। उसने जल्दी से मुझे जगाया और फिर बोली, मैं किचन में जा रही हूँ, तुम अगर मुनासिब समझो तो इसके पास चले जाओ। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ उसे। उसके कमरे में पहुंचकर मैंने हैरत से देखा, वो जाग रहा था और आधे धड़ से मसहरी से लटका बैठा हुआ था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, ओहो, मैंने अब तुम्हारा चेहरा देखा है। वैसे रात को तुम्हारी गुफ्तगू भी सुनी थी। गो तुम लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे, लेकिन अंदाजा ये होता था कि तुम मशरिक के किसी मुल्क के बाशिंदे हो। हाँ, ऐसा ही है। सुनो, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कोई तहकीकात नहीं कर रहा और ना ही किसी तरह से तुम्हें मजीद परेशान करना चाहता हूँ। असल में जख्म कम वक्त ऐसी जगह लगे हैं कि मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर कर सकते हो तो मेरा एक काम कर दो। बोलो। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे हस्पताल नहीं लेकर गए। हस्पताल में मेरे लिए खतरा मौजूद है। मुझे 2 तेज़धार छुरियाँ, एक इलेक्ट्रिक हीटर दरकार है और इसके अलावा जो दवाएं तुमने खून रोकने के लिए मेरे बदन पर लगाई हैं वो, और कुछ बैंडेज वगैरह। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास इन चीज़ों का माकूल बंदोबस्त है। तेज़धार छुरियों से तुम अपने जिस्म में लगी गोलियां निकाल लोगे? हाँ, वो आहिस्ता से बोला। कुछ खा पी लो, उसके बाद ये काम कर लेना। उसने एहसानमंदी से मुझे देखा और आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त के बाद मोहिनी बाकायदा नाश्ता लेकर आ गई, कॉफ़ी और उसके साथ ही एक जग में दूध भी लाई। मुलाजमा को उसने नहीं आने दिया।
हालांकि घर में हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे, लेकिन मोहिनी जानती थी कि उसे किस वक्त क्या करना है। हमने उसे स्लाइस वगैरह लगा दिए और इसमें शक नहीं कि उसकी जमा मर्दी ने हमें मुतासिर किया। बड़े इत्मीनान से उसने स्लाइस खाए और मोहिनी का दिया हुआ दूध का गिलास पिया। फिर हंसता हुआ बोला, 2 बॉयल अंडे जो इस प्लेट में रखे हुए हैं असूली तौर पर मुझे मिलने चाहिए, और इसके साथ ही 1 कप कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी की ये खुशबू मुझे दीवाना किए दे रही है। मैं कॉफ़ी का शाइक हूँ, ज़रूर, मैंने कहा, और मोहिनी ने अंडे उसकी जानिब बढ़ा दिए। इतना शदीद जख्मी होने के बावजूद बड़ी शान से बैठा हुआ था। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है कि बार बार शुक्रिया अदा करके किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एहसान एहसान होता है। अब मैं शुक्रिया वगैरह अदा नहीं करूँगा। आप लोग नाश्ते से फारिग होकर मेरी ज़रूरत का बंदोबस्त कर दें। मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैंने मोहिनी को उसकी ज़रूरतें बताई और मोहिनी गर्दन हिलाकर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो इलेक्ट्रिक हीटर और ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आई। मैंने उसके ज़ख्म खोले और वो संभल कर बैठ गया। लेटे रहो, जो काम तुम करना चाहती हो वो मैं कर लूँगा। वो हंसने लगा, फिर बोला, तकदीर की बात है, कभी कभी तलाश करने से बहुत अच्छे लोग नहीं मिलते और कभी इत्तफाकियाँ मिल जाती हैं, और वो भी ऐसे वक्त जब इंसान कोई शदीद ज़रूरत महसूस कर रहा हो। अलबत्ता एक काम करो मेरे दोस्त, बताओ, या तो कोई कपड़ा या कागज़ या रबड़ का टुकड़ा मुझे दे दो ताकि मैं दांतों में दबा लूँ। मैंने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और इसके बाद छुरियाँ गर्म करके उसके जख्म में मसरूफ़ हो गया। शुक्र था कि गोली गोश्त में तो बेशक रह गई थी, लेकिन उसने हड्डियों को मुतासिर नहीं किया। मैंने दोनों बुलेट निकाल दिए और वो खामोशी से मेरी ये कार्रवाई देखता रहा। उसकी हिम्मत ने हम दोनों को बहुत मुतासिर किया। फिर मैंने उसके जख्मों पर दवाएं लगाईं। मुझे उम्मीद थी कि ये दवाएं उसके जख्मों को दुरुस्त करने में कारगर होंगी। वैसे भी इस दौरान इतने तजुर्बात हो चुके थे कि बहुत सी चीज़ों से वाकफियत हासिल थी, लेकिन उसकी शख्सियत हमारे लिए बड़ी पुरसहर थी और हमने अभी तक उसके बारे में मालूम नहीं किया था। हमें एहसास था कि जख्मों की ये तकलीफ उसे बहुत बेचैन रखेगी। चुनाचे हमने उसे ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बाद गहरी नींद सुला दिया और फिर वहाँ से हट गए। मैं और मोहिनी उसके बारे में मुसलसल गुफ्तगू करते रहते। मोहिनी ने कहा, जब भी उस पर निगाह पड़ती है ये एहसास होता है कि वो किसी बहुत अच्छे ख़ानदान का फ़र्द है और एक अच्छी शख्सियत का मालिक है। पता नहीं बेचारे की क्या कहानी है, मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं ज़रा ट्रेलर की खबर ले लूँ। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़रा गैर मुनासिब रहेगा, और अगर कोई ख़तरनाक सूरत हाल पेश आ गई तो। मोहिनी ने कहा और मैं मुस्कुरा दिया। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आई तो मैं उससे निमट लूँगा मोहिनी। वो हंस पड़ी, फिर बोली, मैं भी चलूँ? उसके इस अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं। इसके बाद मोहिनी खामोश हो गई तो मैंने उसे कहा, सब कुछ ठीक है मोहिनी, लेकिन वो हमारी हिफाजत में है और तुम्हें उस पर निगाह रखना होगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। मोहिनी ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। मैं चल पड़ा। मेरा अपना खून आलूद लिबास भी मेरी निशानदेही कर सकता था। चुनाचे मैंने मोहिनी से कहा कि इसे जलाकर खाकस्तर कर दे ताकि कोई उल्टी सीधी बात ना हो सके। फिर मैं ये सफ़र करके ट्रेलर तक पहुंचा। ट्रेलरों की दुनिया खामोश थी। अमूमन वीकेंड पर ही यहाँ रश हुआ करता। आम दिनों में ये ट्रेलरों का कब्रिस्तान मालूम होता। मुझे एहसास हो गया कि वहाँ कोई ऐसा अमल नहीं हुआ जिससे ये अंदाज़ा हो कि मेरे ट्रेलर की तलाशी वगैरह ली गई है। इसका मतलब है कि वो लोग जो चले गए थे फिर वापस नहीं आए। वैसे भी मैंने उनकी खासी मुरम्मत कर दी थी और यकीनी तौर पर वो सिर्फ 2 ही अफराद थे जो इस सिलसिले में अमल कर रहे थे। ट्रेलर वगैरह की अच्छी तरह सफाई वगैरह करने के बाद और हर तरह से निशानात मिटाने के बाद मैं फिर वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गया। फिर रात को हमने उससे तफसीली मुलाकात की। उसे भी हर तरह की सहूलत दी गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि रात तक वो बिल्कुल दुरुस्त नजर आने लगा। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से हमें देखते हुए कहा, जो लोग बेलौस और बेगर्ज किसी की मदद करते हैं उनका शुक्रिया अदा करना उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। आप लोगों ने मेरे साथ जो एहसान किया है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं उसका सिला दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं बहुत अच्छे अंदाज में आपको याद रखूंगा, बेहद एहसानमंद हूंगा आपका। नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि आपका ताल्लुक एशिया के किसी मुल्क से है। जी हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, उसने जवाब दिया और मेरे दिल में एक हल्की सी हूक उठी। मोहिनी ने भी मेरी तरफ देखा। वो कहने लगी, और आप लोग बस अब तो लंदन के पास ही हैं। नहीं, उससे पहले भी बस इस दुनिया में भटकते ही रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो भी सच्चाई है। मेरा नाम शहजादा नदीम है। ये मेरी मिसेज मोहिनी है। लंदन में हम बस छोटा मोटा सा कारोबार करते हैं और यही फ़रोकश है। आपकी ये रिहाइश का बेहद शानदार है। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मैं मुंतज़िर था कि आप मुझसे मेरा नाम पूछें। सॉरी, हमें पहले पूछना चाहिए था। मुझे अब्दाल शाह कहती हैं। और इससे आगे पीछे की कहानी इतनी शर्मनाक है कि बयान करते हुए अफसोस होता है। ठीक है,
अगर आप बयान नहीं करना चाहते तो ना सही। जैसा कि आपने कहा कि हमने आपकी बेलौस खिदमत की है, तो दर हकीकत बेलौस ही हैं हम। हाँ, तजस्सुस होता है जहन में। हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, और जिस तरह भी आप चाहें हमें अपनी ज़रूरियात से आगाह कर दें, यहाँ अंदर या फिर बाहर। मामलात में अगर हमारी मदद दरकार हो तो हम हाजिर हैं। उसने हैरत से मुझे देखा और बोला, गोया आप इस बात पर नाराज नहीं हुए कि इतनी मदद हासिल करने के बावजूद मैं आपको अपने बारे में बताने से गुरेज कर रहा हूँ। नहीं दोस्त, हमने किसी गर्ज के तहत मदद नहीं की, बस आप कोई भी होते, उस वक्त आप जिस आलम में थे हम पर फर्ज था कि आपकी मदद करते। वो गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, मैंने अपनी उस कहानी को शर्मनाक इसलिए कहा कि लोगों का ख्याल है कि मैं अच्छी खासी जिसामत का मालिक हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मेरी शख्सियत भी बुरी नहीं। इसके बावजूद मैंने एक ऐसा फैसला किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बस अपने उस फैसले का शिकार हो गया मैं, और उसी पर मुझे दुख है। होता है, बाज़ औक़ात इंसान जिंदगी में गलत फैसले कर लेता है। मैंने कहा और वो हंसने लगा। फिर बोला, अब आप मेरे बारे में जानने से गुरेज कर रही हैं। वजह बता चुका हूँ। आपके बारे में जानना मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं। मुझे इसका एहसास है। असल में आप यकीन कीजिए, बात तन आसानी और एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करने की कोशिश की नहीं थी। बस इस दुनिया में तन्हा था बिल्कुल। वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, कोई बहन भाई भी नहीं था। थोड़ी बहुत तालीम हासिल की और उसके बाद नौकरी की तलाश में सरगर्दा हो गया। लेकिन अपने वतन में खासी मुश्किलात हैं। मुआशी तौर पर हम लोग बड़ी उलझनों का शिकार हैं, वसाइल कम से कम। बस आप यूं समझ लीजिए कि मैं वतन को दोष नहीं देता। कभी कभी तकदीर इस तरह गिरफ्त में लेती है कि इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता। मैं भी तकदीर की गिरफ्त में था और वक्त के धक्के खा रहा था। वो एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन मैं उसे अपनी बिपता सुनाने पर जैसे उकसाता रहा, और बिल आखिर उसने कहना शुरू किया। सूफी हशमतुल्लाह बस्ती के हर दिल अजीज लोगों में से थे। हर शख्स उनकी इज्जत करता, नेक और दीनदार आदमी थे। बस्ती के हर शख्स के काम आने को तैयार। करियाने की एक छोटी सी दुकान करते थे, सच बोलते थे और पूरा तोलते थे। किसी को कभी उनकी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। दुकान पर और दुकान बंद करने के बाद जो वक्त मिलता वो मजहब की तबलीग में सरफ करते। आलिम नहीं थे लेकिन सच्ची बातों पर बाअमल जरूर थे, और यही सब कुछ दूसरों को बताते। अहलिया का इंतकाल हो चुका था। एक बेटा था अब्दाल, जिसकी उम्र अब 7 बरस के करीब थी। चुनाचे उस छोटी सी दुकान की आमदनी दोनों बाप बेटों की बेहतर कफालत के लिए काफ़ी थी। एक भाई थे जो बस्ती की एक मस्जिद के मुअज्जिन थे और अपनी बीवी बच्चों के साथ मस्जिद से मुल्हिक मकान में रहते। सदाकतुल्लाह भाई की बानिस्बत दीनी तालीम से ज़्यादा वाकफियत रखते थे, लेकिन हशमतुल्लाह की हर दिल अजीज़ी से कबीदा खाते रहते और भाई को ज़्यादा पसंद नहीं करते। यही वजह थी कि दोनों की मुलाकातें रस्मी सी थीं। भाइयों वाली यगानगत मौजूद नहीं थी। सूफी हशमतुल्लाह की नेक फितरत की वजह से बस्ती वालों को उनके इख्तलाफ की खबर नहीं थी। सूफी हशमतुल्लाह सुबह ही सुबह नई घड़ी से दुकान के लिए सौदा खरीदने गए। बारिश का मौसम था और इस मौसम में बस्ती वाले बस्ती से बाहर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि रास्ते में एक बरसाती नदी पड़ती थी जिसे पार करना मुश्किल हो जाता। जरा सी बारिश में ऐसी चढ़ती कि हाथी डबाव पानी हो जाता और उसे अबूर करना नामुमकिन। मुबीन अली ने मना किया कि इस मौसम में ना जाएं, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोले, दुकान में बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं मुबीन भाई, बारिश का क्या है, ठीक है अगर झड़ी लग गई तो हफ्तों पर बात जाएगी और दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस सुबह जाऊंगा और दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन उनके जाते ही बारिश शुरू हो गई और फिर तेज से तेज होती गई। घर में अब्दाल के सिवा कोई भी नहीं था। मासूम बच्चा किसी खतरे से बेनियाज अपने मशागिल में मसरूफ रहा। सूफी साहब दोपहर तक वापस नहीं आए, शाम को भी नहीं आए, रात को भी नहीं आए, और सहमा हुआ अब्दाल पड़ोस के एक घर में पहुंच गया। अब्बा जी अभी तक नहीं आए मुबीन चचा, उसने परेशानी से कहा। अरे क्या वो सुबह को चले गए थे? हाँ कह गए थे कि दोपहर तक आ जाऊंगा। फिक्र मत करो बेटे, बारिश की वजह से नदी चढ़ गई होगी इसलिए वो दूसरी तरफ रुक गए होंगे। बारिश रुकी तो नदी उतर जाएगी और मुमकिन है वो कल ही आ जाएं। तुम खाना वगैरह खाओ और आराम से यहाँ सो जाओ। बीवी अब्दाल को खाना खिला दो, मुबीन अली ने अपनी बेगम से कहा और अब्दाल बहल गया। बारिश रात में किसी वक्त रुक गई। दूसरी सुबह आसमान साफ था। अब्दाल बाप का इंतजार करने लगा। उसने रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक घर और दुकान की सफाई कर ली, लेकिन दोपहर को एक रूह फरसा खबर बस्ती में पहुंची और बस्ती के लोग गमो अंधों में डूब गए। रांझा अपनी बैलगाड़ी में बस्ती में पहुंचा। उसने बस्ती वालों को बताया कि कल दोपहर को वो बस्ती वापस आ रहा था, लेकिन नदी चढ़ी देखकर उसे नदी अबूर करने की हिम्मत न हुई। उसी वक्त सूफी हशमतुल्लाह भी नदी के किनारे पहुंचे। वो नदी अबूर करने के लिए बेचैन थे।
رانجھا نے انہیں روکا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ندی زیادہ نہیں چڑھی، بستی میں ابدال ان کا انتظار کر رہا ہوگا، اگر وہ نہ پہنچے تو ابدال پریشان ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں اتر گئے۔ تھوڑی دور تک وہ تیرتے رہے، لیکن پھر پانی کا ایک پرشور ریلا آیا۔ اس وقت وہ عین درمیان میں تھے۔ پھر 2-3 بار وہ پانی میں ابھرے اور اس کے بعد غائب ہو گئے۔ رانجھا دوبارہ انہیں نہیں دیکھ سکا۔ یہ خبر پوری بستی میں پھیل گئی۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے، اب تو صوفی صاحب کی لاش کی تلاش بھی فضول تھی۔ تاہم بستی کے گھوڑا سوار ندی کے کنارے کنارے میلوں دور تک گئے۔ ندی کی کیچڑ میں بھی حشمت اللہ کی لاش کی تلاش کی گئی، لیکن بے سود، ان کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ بستی اندوہ میں ڈوب گئی۔ جس نے سنا افسوس کیا۔ صداقت اللہ بھی تڑپ کر پہنچ گئے اور دھاڑے مارنے لگے۔ اختلافات اپنی جگہ تھے، لیکن وہ بھائی کی موت کے خواہاں نہیں تھے۔ تنہا ابدال کو انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ بستی کے بے شمار لوگ ابدال کو سینے سے لگانے کے لیے تیار تھے، لیکن چچا کی موجودگی میں کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ تھا۔ چنانچہ ابدال ان کی تحویل میں پہنچ گیا۔ بیگم صداقت اللہ نے البتہ ان کے اس اقدام پر سخت اختلاف کیا۔ دھن برس رہا ہے نا جیسے ہمارے گھر میں، بچوں کی پرورش جیسے تیسے کر رہی ہوں، میں ہی جانتی ہوں۔ اب ایک اور فرد کا اضافہ کر لیا تم نے، کھانا کپڑے بیماری، میں کہتی ہوں یہ سب کہاں سے ہوگا؟ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جائے گا۔ میں اس کا چچا ہوں۔ آخر بستی والوں کی شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔ لوگ کیا کہتے اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ دوسروں کے یہاں پلتا؟ صداقت اللہ نے جواب دیا، بڑے چہیتے بھائی تھے نا، ہمیشہ تمہاری کاٹ میں رہے، کبھی پنپنے نہ دیا، صوفی بن گئے تھے اور ہمارا حق مارتے تھے۔ میں کہتی ہوں بچیاں جوان ہو رہی ہیں، پیسے کی بچت ضروری ہے، ہم اس کا خرچ کہاں سے برداشت کریں گے؟ کیا لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کر بوڑھا کر دو گے؟ خدا کی بندی بھائی صاحب اس قدر کلاش بھی نہیں تھے، تھوڑی سی عقل سے بھی کام لو۔ ابدال اگر ہمارے ساتھ رہے گا تو بھائی صاحب کی چھوڑی ہوئی ہر چیز ہماری ملکیت بن جائے گی۔ اس غریب کا ہمارے علاوہ اور کون ہے؟ دکان میں اگر کچھ بھی نہیں تو 1500 کا سامان ضرور ہوگا، اس کے علاوہ ان کا مکان بھی ہے، اور بھی کچھ رکھا ہی ہوگا انہوں نے۔ بیگم صداقت اللہ ایک دم سنبھل گئیں، پھر بولی، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب دکان کون چلائے گا؟ جو سامان اس میں ہے اسے گھر لے آؤ، وہاں پڑے پڑے خراب ہوگا۔ چند روز تو رکو، فوراً ہی یہ سب کچھ کر لوں تو بستی والے کیا کہیں گے؟ صداقت اللہ نے جواب دیا اور ان کی بیگم خاموش ہو گئی۔ صوفی حشمت اللہ کی طرح ان کے بھائی صاف دل نہ تھے، اس کے علاوہ وہ زن مرید قسم کے لوگوں میں سے تھے۔ خود ان کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی، جس طرف بیگم کا اشارہ ہوتا اسی طرف چلتے۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد بھی وہ اسی انداز میں سوچنے لگے۔ بھائی کی موت کے بعد دل میں ان کی محبت ابھری تھی، لیکن رو دھو کر ٹھیک ہو گئے۔ بھتیجے کو لائے تو خلوص سے تھے، لیکن بیگم کی مخالفت اور دلائل سے گھبرا گئے۔ جان چھڑانے کے لیے دکان اور مکان کا ذکر بادل نخواستہ کر دیا، لیکن اب سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہی تو ہے، ابدال کہاں پرورش پائے گا، خرچ بھی ہوگا، دکان چلانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 7 سالہ ابدال کیا کرے گا؟ چنانچہ سامان لے آنا ہی بہتر ہوگا۔ رہ گیا مکان تو اس کی فروخت کے سلسلے میں جلد بازی سے کام لینا مناسب نہیں ہوگا۔ جب بچیوں کی شادی ہوگی تب اسے فروخت کر کے کام چلایا جائے گا۔ بیگم کو بھی یہی سمجھانا مناسب ہے۔ بیگم صداقت اللہ زمانہ ساز خاتون تھی، صوفی صاحب سے ہمیشہ سے کینہ رکھتی تھی۔ ابدال کو سینے سے لگانے کا کیا سوال، لیکن دکان اور مکان کا معاملہ تھا جو انہوں نے اب سے چند لمحات قبل نہیں سوچا تھا۔ لیکن اب بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے شوہر سے وعدہ کیا کہ وہ مطمئن رہے، ابدال کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ معصوم بچہ ان زمانہ ساز بولوں کے ساتھ رہنے لگا، اور چند ہی دنوں میں اس کے دل سے باپ کی جدائی کا اضطراب ختم ہو گیا۔ چاچی امی کی صحبت اور چچا کی شفقت نے اس کے معصوم دل کو مطمئن کر دیا۔ بستی کے لوگوں کو کافی عرصے تک صوفی حشمت اللہ یاد رہے۔ ابدال پر بھی نگاہ رکھی گئی، لیکن چچی اور چچا کے سلوک سے مطمئن ہو گئے۔ ظاہر ہے خون کے درمیان تھا، اس میں کوئی کھوٹ کی کیا گنجائش۔ لیکن بیگم صداقت اللہ مطمئن نہیں تھی۔ ابدال انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا انہیں زہر لگتا۔ پھر آہستہ آہستہ ابدال سے گھر کے کام لیے جانے لگے، اور اس نے خوش دلی سے یہ فرائض سنبھال لیے۔ لیکن پھر ان کاموں کی تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ بچہ ابدال کا محتاج ہو گیا۔ اب بکریوں کے لیے چارہ لانے سے رات کو قدرت اللہ صاحب کے پاؤں دبانے تک کی ذمہ داری ابدال کے کاندھوں پر آ پڑی۔ کمزور شانے اس بوجھ سے چور چور ہو جاتے۔ زبان کھولی تو مار پڑنے لگی۔ صداقت اللہ صاحب بھی دوسروں سے پیچھے نہیں تھے۔ جب بیگم ابدال کی مخالف تھی تو پھر وہ اس کے ہمدرد کس طرح رہ سکتے تھے؟ چنانچہ ابدال کی بدبختی کا دور شروع ہو گیا۔ اسے اس ماحول سے نفرت ہونے لگی، لیکن اس کی سوچ محدود تھی، اور اپنے طور پر وہ بالکل بے بس۔ باپ کے بتائے ہوئے چند اصول اسے اب بھی یاد تھے۔ چنانچہ سچ بولتا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا سیدھے راستے اپناتا۔
लेकिन उन दिनों वो शदीद कशमकश का शिकार था। कई वाक़यात होते थे जिसमें उसने सच बोला था और मार खाई थी। अगर वो सच ना बोलता तो शायद मार ना खाता। उसने इस बारे में बारहा सोचा, लेकिन झूठ के लिए जुबान ही नहीं खुलती। सच बात हमेशा मुंह से निकल जाती। जुमा के दिन सदाकतुल्लाह लोगों को मसाइल समझाते थे, इबादत करने, सच बोलने और यतीमों बेवाओं के साथ अखुवत व अदल का दरस देते। सच बोलने की हदायत करते, लेकिन उनमें बहुत सी बातें अब्दाल की समझ में नहीं आती थीं। चचा मियाँ, एक रात पाँव दबाते हुए उसने सदाकतुल्लाह को आवाज़ दी, एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछ, मगर पाँव दबाए जा, सदाकतुल्लाह ने कहा। अखुवत व अदल किसे कहते हैं? उसने पूछा और सदाकतुल्लाह चौंक पड़े। उन्होंने गर्दन उठाकर अब्दाल को देखा। क्या मतलब है तेरा? यतीमों के साथ अदल करना चाहिए या अखुवत? उसने मासूमियत से सवाल किया, लेकिन सदाकतुल्लाह उठकर बैठ गए। जुल्म हो रहा है तुझ पर, गोश्त काटा जा रहा है तेरा। क्यों? जरा से घर के काम कर लेता है तो तंज कर रहा है, कमीने। सदाकतुल्लाह ने कलात रसीद की और अब्दाल उछलकर चारपाई से नीचे जा पड़ा। चोट काफी लगी थी उसको, लेकिन इस मार की वजह उसकी समझ में नहीं आई। अगर ये अल्फाज इतने बुरे थे तो सदाकतुल्लाह साहब मस्जिद में दूसरे लोगों से क्यों कहते? वो रोने लगा और सदाकतुल्लाह ने उठकर मजीद 2 लातें उसके रसीद कर दी, फिर कमरे से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से उन लोगों का रवैया उसके साथ और सख्त हो गया। सदाकतुल्लाह उससे पाँव नहीं दबवाते थे, लेकिन इंतहाई नफरत का सलूक करते थे उसके साथ। सारे घर से अलग ड्योढ़ी में वो जमीन पर सोता। सर्दियों के दिनों में लिहाफ वगैरह का भी बंदोबस्त नहीं था उसके लिए, लेकिन तन्हा सोते हुए उसे बड़ा खौफ महसूस होता। अपने बाप सूफी हशमतुल्लाह के अल्फाज उसे याद आए, इंसान को साबिर और शाकिर होना चाहिए, बुरा वक्त गुजर ही जाता है। चुनाचे खौफ से बचने के लिए वो जोर से आंखें भींच लेता और इस तरह उसे नींद आ जाती। उस दिन वह बकरियों के लिए चारा लेने गया। कब्रिस्तान के उस तरफ खेतों का सिलसिला दूर तक चला गया था। एक पगडंडी किसी दूसरी बस्ती को गई थी। चारे का गट्ठर बांधकर उसने सर पर रखा और वापस पलट पड़ा। पगडंडी से एक घुड़सवार गुजर रहा था। ये चौधरी चंदर शर्मा थे, बस्ती के सबसे बड़े जिम्मेदार। कई बार अब्दाल ने उन्हें घोड़े पर सवार जाते हुए देखा और सोचा था कि ना जाने लोगों के पास घोड़े कहाँ से आ जाते हैं। कितने अच्छे लगते हैं चौधरी साहब घोड़े पर बैठे हुए, और कैसा मजा आता होगा उन्हें। दूर तक वो चौधरी साहब को जाते हुए देखता रहा, और जब वो निगाहों से ओझल हो गए तो वो भी चारे का गट्ठर संभाल कर पगडंडी पर हो लिया। लेकिन अभी चंद कदम आगे बढ़ा था कि एक चीज पर निगाह पड़ी। कपड़े की थैली सी थी। वो आगे बढ़ा और थैली के करीब पहुंच गया। गट्ठर उतार कर एक तरफ रखा और झुककर थैली उठा ली। उसका मुंह खोला तो उसमें नोट भरे हुए थे। ये थैली जरूर चौधरी साहब की है, वही अभी इधर से गुजरे हैं, उसने सोचा। वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता था कि भागकर चौधरी साहब को पकड़ ले और थैली उन्हें दे दे। और उसे याद आया कि एक दिन मस्जिद में एक शख्स कुछ रकम लाया था और उसने मौलवी सदाकतुल्लाह से ऐलान कराया था कि जिसकी रकम हो वो निशानी बताकर ले ले। यही तरकीब अच्छी है। चचा मियाँ ये थैली चौधरी साहब को पहुंचा देंगे। उसने थैली अपने लिबास में रख ली और फिर गट्ठर उठाकर आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने चारा एक तरफ रखा। बहुत से बर्तन धोने के लिए रखे थे। सदाकतुल्लाह साहब मौजूद नहीं थे। वो बर्तन धोने में लग गया। फिर जब उसने सदाकतुल्लाह साहब की आवाज़ सुनी तो जल्दी जल्दी बाकी बर्तन रखकर उनके पास पहुंच गया। चचा मियाँ ये, उसने थैली लिबास से निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दी। क्या है ये? सदाकतुल्लाह साहब अब उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। पैसे हैं चचा मियाँ। कैसे पैसे? सदाकतुल्लाह ने थैली उसके हाथ से झपट ली और फिर उसे खोलकर देखने लगे, लेकिन उसके अंदर नोटों की गड्डियां देखकर उनकी सांस रुकने लगी। उन्होंने सरासीमा निगाहों से अब्दाल को देखा। ये कहाँ से आए हैं? चौधरी चंदर शर्मा जी कब्रिस्तान वाली सड़क से अपनी घोड़ी पर गुजर रहे थे। उनकी जेब से गिर गए, मगर उनकी घोड़ी इतनी तेज दौड़ती है कि मैं भागकर उनके पास नहीं पहुंच सकता था, तो मैं इसे ले आया ताकि आप इसे चौधरी जी को दे दें। अगर आप कहें तो मैं उनके घर दे आऊं, अब्दाल ने पूछा। लेकिन सदाकतुल्लाह साहब के जहन में तो साएं साएं हो रही थी। ये रकम तो उनकी तकदीर बदल सकती है। इस रकम से तो उनके सारे दुख दूर हो सकते हैं, बच्चियों की शादी हो सकती है, नया मकान बन सकता है, वो किसी दूसरी बस्ती में जाकर कोई कारोबार शुरू कर सकती हैं। मस्जिद की रोटियां खाते खाते दिल भर गया था, लेकिन कुछ और भी तो कर नहीं सकते थे। लेकिन आज मौका मिल गया। दे आऊं चचा मियाँ? अब्दाल के सवाल ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने जोर से हथेली भींच ली और फिर आहिस्ता से बोले, नहीं, मैं खुद पहुंचा दूंगा, मैं खुद दे आऊंगा। ठीक है चचा मियाँ, अब्दाल ने कहा और वहां से वापस पलट पड़ा। मौलवी साहब उसे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। अब्दाल, कहीं वो इनके और इनके औलाद के मुस्तकबिल का कातिल न बन जाए। अगर इसने किसी से इस रकम का तज़किरा कर दिया तो रकम उनसे छिन जाएगी। इतनी बड़ी दौलत तो वो पूरी जिंदगी में नहीं हासिल कर सकते। सारी जिंदगी कोल्लू के बैल की तरह मेहनत करते रहे, तब भी इतनी बड़ी रकम। लेकिन अब्दाल का क्या करें?
उन्होंने थैली जल्दी से अपने बिस्तर में छुपा दी और बिस्तर पर लेट गई। बहुत से काम करने थे उन्हें, लेकिन अब तो हाथ पांव हिल भी नहीं रहे थे, पूरा बदन ईंट रहा था। इस वक्त क्यों लेटे हो? उनकी बेगम ने अंदर दाखिल होकर पूछा। बस ऐसे ही, तबीयत ठीक नहीं है सोबिया। क्या बात है? बुखार महसूस हो रहा है, उन्होंने सोबिया को देखते हुए कहा। इस औरत को अपना राज बताया जाए या ना, कहीं ये भी किसी से ना कह दे। लेकिन सोबिया उनकी बीवी थी, उनके दुख सुख की साथी, वो भला किसी से क्यों कहेगी? दवा मंगवा लूं तुम्हारे लिए? अरे नहीं, ठीक हो जाऊंगा, बस कोई खास बात नहीं है, सदाकतुल्लाह बोले। फिर सोबिया जाने लगी तो उन्होंने आवाज देकर उसे रोक लिया। सुनो सोबिया। और सोबिया रुक गई। वह सवालिया निगाहों से सदाकतुल्लाह को देख रही थी। एक उलझन आ पड़ी है। क्या बात है? सोबिया, इसे देखो। उन्होंने बिस्तर के नीचे से थैली निकालकर सोबिया के हाथ में दे दी। सोबिया ने थैली लेकर उसे खोला और उसकी भी बुरी हालत हो गई। अरे ये तो बहुत है। मैं इसी वजह से परेशान हूँ सोबिया, ये थैली अब्दाल को मिली है। कह रहा था कि चौधरी शर्मा घोड़ी पर जा रहे थे, उनकी गिरी है। मैं इसे वापस कर आऊं। सोबिया, इतनी रकम है ये कि हमारी तकदीर बदल जाएगी। इस बस्ती को छोड़कर किसी दूसरी बस्ती में जा रहेंगे। और सदाकतुल्लाह हाँफने लगे। सोबिया बेगम का चेहरा भी दहकने लगा। दौलत की आग उनके पूरे वजूद में सरायत कर गई। तब वो आहिस्ता से बोली, मगर तुम इस रकम को दबा जाओ, वापस करने की जरूरत ही क्या है? अब्दाल का क्या करोगी सोबिया? किसी से कह दिया कमबख्त ने तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, जो कुछ है वो भी छिन जाएगा। तो चुपके से गर्दन दबा दो नाच पीटे की, किसी नदी में फेंक आओ। उसके दम से मुसीबतें ही मुसीबतें मिली हैं हमें, फल क्या मिला? सोबिया ने कहा। कोसने से काम नहीं चलेगा सोबिया, कुछ करना होगा। अगर थैली शर्मा जी को पहुंचा दी तो वाह वाह तो हो जाएगी, लेकिन उससे क्या मिलेगा? जबकि अभी ये रकम हमारी है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ये रकम हम तक पहुंच गई है। नफीसा के अब्बा, जो मैं कह रही हूँ वही करो। ईमान से हिम्मत कर जाओ, पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। इस वक्त हिम्मत कर जाओ अपने बच्चों के लिए। दुनिया तो औलाद को पालने के लिए ना जाने क्या क्या करती है, सोबिया ने कहा। और सदाकतुल्लाह सोच में पड़ गए। दूसरा कोई तरीका नहीं है इसे बाज रखने का। वह फिसफिसी आवाज में बोले, मुमकिन ही नहीं है। सांप के बच्चे संपोलिए होते हैं, जहर फैलाने से बाज नहीं आएंगे। नहीं नफीसा के अब्बा, अगर अब्दाल बच गया तो जरूर फंसा देगा। या तो रकम वापस कराओ या फिर दूसरा काम करो। खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा सोबिया? और फिर कत्ल? अगर पता चल गया हो तो पुलिस ले जाएगी। पता चलेगा ही कैसे? गर्दन दबाकर रात को निकल जाना और नदी में डाल आना। सुबह कहीं से कहीं पहुंचेगा, हम झूठ मूठ को तलाश करेंगे और रो पीट कर खामोश हो जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी मोहब्बत करने वाले चचा चची भला कोई गलत हरकत कर सकती हैं। सदाकतुल्लाह गहरी सोच में डूबे हुए थे। फिर उन्होंने सोबिया से कहा, तुम उसे जरा मेरे पास भेज दो, और हाँ, जरा अहमदुल्लाह को अली मदद के यहाँ भेज दो। कहलवा देना मुझे बुखार आ गया है, आज अजान वगैरह वही दे और नमाज पढ़ा दे। ठीक है, सोबिया ने कहा और बाहर निकल गई। सदाकतुल्लाह ने थैली फिर छुपा दी और फिर वो अब्दाल का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो हाथ पहुंचता हुआ पहुंच गया। सदाकतुल्लाह उसे बगौर देख रहे थे। अब्दाल, रकम की ये थैली तुमने कहीं से चुराई तो नहीं? नहीं चचा मियाँ, अगर चुराता तो आपको क्यों देता? ये मैंने पगडंडी से उठाई है और आप इसे चौधरी शर्मा को दे दें। तुमने किस किस को ये बात बताई है? किसी को नहीं चचा मियाँ। क्यों? क्या ये मुमकिन है अब्दाल कि तुम इसके बारे में किसी को ना बताओ? इसमें काफी दौलत है। हम लोग यानी तुम भी इसे मजे से खर्च करेंगे, उम्दा उम्दा कपड़े बनाएंगे, किसी दूसरी बस्ती में चलकर रहेंगे। अब्दाल हैरान रह गया। लेकिन ये पैसे तो शर्मा जी के हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। कौन कहेगा उनसे? देखा ही किसने है? ये गुनाह है चचा मियाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब्बा ने कहा था कि दूसरे की दौलत पर कभी निगाह ना रखो। तुम बस जुबान बंद रखना, भूल कर भी किसी को मत बताना कि तुम्हें ऐसी कोई थैली मिली थी। सदाकतुल्लाह की आंखों में हवस नाच रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, थैली मुझे मिली थी चचा मियाँ, मैं शर्मा जी को जरूर बता दूंगा, ये तो बड़ा गुनाह है। हाँ, सदाकतुल्लाह साहब हंस पड़े। शाबाश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम इम्तिहान में पास हो गए। क्या कर रहे थे? जी, झाड़ू दे रहा था। तुम यहाँ बैठो, आज झाड़ू कोई और दे देगा। मेरी तबीयत खराब है, हाँ जरा सर दबाओ, सदाकतुल्लाह ने कहा। शाम का खाना भी उन्होंने अब्दाल को अपने कमरे में ही खिला दिया। सोबिया कई बार उनके पास आ चुकी थी और एक दफा सदाकतुल्लाह साहब से सरगोशियों में उनसे कुछ कहा। शाम हुई तो बस्ती तारीख हो गई। सरे शाम ही लोग घरों में जा घुसे। यूं भी सर्दियों के दिन थे, बस्ती का हर घर बंद हो गया। तो सदाकतुल्लाह ने अब्दाल को देखा, थोड़े फासले पर जमीन पर पड़ा सो रहा था। घुटने सर में दिए हुए थे, बदन पर पतली सी चादर पड़ी हुई थी।